Hello students, welcome to my new video. In this video we are going to learn about the sixth lesson of history, colonialism, urbanization and de-urbanization. So you should take your SST textbook and open your page number 46. In the beginning of this lesson there are some new words and their meanings, and these words especially used during the British period. So we should understand the meanings of these words here. Okay. First, cantonment means a town with a permanent military camp. Means those towns had permanent military camp. These towns were called the cantonment. Okay. Then next, clock tower means a tall tower with a clock at the top. Means those towers had clock on top of it. Okay. These towers were called the clock tower. Okay. Then next is a colonial town, a town connected with or belonging to a country that controls another country. First you should understand the meaning of colonization. What is mean by colonization? One big country control on small countries. Okay. This process is called the colonization. And what is the meaning of the colonial town? A town connected with belonging to a country that controls another country. Those towns connected with this big country, जो country small country पे control कर रही है, उसे ये town connected रहता था. Okay, that town was called the colonial town. Okay. Then dome means a round roof with a circular base. Then next word is a heritage means the history and traditions of a country or society that forms an important part of its character. Heritage means these are the traditions of country or society. Okay. And these traditions, this history, this past has some importance, and these tradition, these histories is called the heritage. Okay. जो भी ट्रेडिशन, जो भी हिस्ट्री, जो भी पास्ट है, उसे कुछ इम्पोर्टेंस रहता है, उसे हम बोलेंगे हेरिटेज कोई भी सोसाइटी में. ओके. देन पोर्ट सिटी, अ सिटी विथ अ हार्बर, one where ships loads and unload goods. Ports city means जहाँ पे शिप्स में गुड्स भरे जाते हैं और गुड्स उतारे जाते हैं, जो सिटी में, उसे हम बोलेंगे पोर्ट सिटी. वॉल सिटी मीन्स अ फोर्टिफाइड सिटीज. फोर्टिफाइड मीन्स construct the wall around the city to protect the people, or sometimes to protect the goods also. Okay, that is called the fortification. Means wall city. Okay. Now come to the lesson. In pre-British India means before British period, towns and cities flourished. Flourished means developed, rich, and there were towns and cities developed around the royal court. And during the Mughal period there were royal court of rulers. Okay. And some cities developed around these royal courts. Some cities developed around the craft centers. Craft centers means some peoples prepared the goods or things for selling. Okay. एंड जहाँ पे ये जो भी गुड्स थिंग्स प्रिपेयर करते थे, बनाते थे, वो प्लेस को हम बोलेंगे क्राफ्ट सेंटर्स. एंड सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड दिस क्राफ्ट सेंटर ऑल्सो. एंड सम सिटीज़ डेवलप्ड बिसाइड्स द रोड्स. and some cities developed around the place of pilgrimage. Pilgrimage means like temple, mosque, means तीर्थ क्षेत्र. Okay. तो कुछ सिटीज़ यहाँ पे भी डेवलप्ड हुई थी अराउंड द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज. ओके. तो जो सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी, तो इस तरीके से ये सिटीज़ मुग़ल पीरियड में डेवलप्ड हुई थी, फ्लरिश्ड हुई थी, रीच हुई थी. ओके. However, with the
advent of British, many Sultanate and Mughal era towns and cities lost prominence to newly established British cities such as Bombay, Madras, and Calcutta. And there were many towns and cities of Mughal period lost their importance during the British period. ओके ये जो मुग़लों के पीरियड में जो सिटीज़ वहाँ पे फॉर्म हुई थी ये अब इनका जो भी इम्पोर्टेंस था ये ख़त्म हो रहा था. वाई? Because British established new cities in our India, okay, like Bombay, Madras, Calcutta, okay, Mumbai, Chennai and Kolkata. तो ये जो न्यू सेंटर्स उन्होंने यहाँ पे डेवलप किए थे, ये सिटीज़ यहाँ पे डेवलप की थी, उसकी वजह से जो मुग़लों के पीरियड में सिटीज़ डेवलप हुई थी इनका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रहा था, ये डिक्लाइन हो रही थी. ओके, thus the process of urbanization and de-urbanization is closely linked to the rise and decline of kingdoms. Okay, and there are two process, urbanization and de-urbanization. Urbanization means developed the city, कुछ cities developed हो रही थी तो कुछ cities डिक्लाइन हो रही थी. ओके, that is called the de-urbanization. Got it? And in this lesson we have to study about these two process, urbanization and de-urbanization. Okay, next topic is here urbanization and de-urbanization means कौन सी cities डेवलप हुई और कौन सी cities डिक्लाइन हुई, इनके बारे में हमें ये लेसन में पढ़ना है ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. गॉट इट? ब्रिटिशों के पीरियड में कौन सी सिटीज़ डिक्लाइन हुई, कौन से सिटीज़ का जो भी इम्पोर्टेंस था बिफोर द ब्रिटिश पीरियड ये लॉस्ट हुआ था, और कौन सी सिटीज़ यहाँ पे डेवलप्ड हुई थी, मीन्स कौन सी इम्पोर्टेंट सिटीज़ यहाँ पे फॉर्म हुई थी, ये हमें पढ़ना है. विद द कमिंग ऑफ द दिल्ली सुल्तान एंड मुगल्स देयर वाज अ revival of urbanization process in the medieval ages. There were a revival of urbanization process. Revival means restart, reform. Okay, फिर से उन्होंने यहाँ पे कुछ cities developed की थी दिल्ली सुल्तान एंड मुग़लों ने. दे डेवलप्ड न्यू ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, और उन्होंने न्यू ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स डेवलप किए थे. एंड सम लर्निंग सेंटर्स भी यहाँ पे इमर्ज हुए थे अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रूलर्स. पैट्रोनेज मीन्स सपोर्ट, कुछ रूलर्स का लर्निंग सेंटर्स को सपोर्ट था, इसकी वजह से वहाँ पे लर्निंग सेंटर्स भी इमर्ज हुए थे. कैपिटल सिटीज़ ऑफ मिडिवल रूलर्स इमर्ज एज ए इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक सेंटर्स, और जो भी कैपिटल सिटीज़ वहाँ पे रहती थी मिडिवल पीरियड में मिडिवल रूलर्स की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक सेंटर्स डेवलप्ड होता था. ओके, इमर्ज होता था. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एस्टाब्लिश्ड बाय द दिल्ली सुल्तान्स and the Mughal emperors were आगरा, हिजार, फिरोज़ाबाद एंड द फतेहपुर सीकरी. और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी, एस्टाब्लिश हुई थी ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड बाय दिल्ली सुल्तान. कुछ दिल्ली सुल्तानों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीज़ वहाँ पे एस्टाब्लिश की थी. एंड मुग़ल एम्परर्स ने भी कुछ सिटीज़ यहाँ पे डेवलप्ड की थी, लाइक आगरा, हिजार, फिरोज़ाबाद एंड द फतेहपुर सीकरी. ओके, ये जो सिटीज़ थी ये मुग़ल एम्परर्स एंड दिल्ली सुल्तान्स ने डेवलप्ड की थी, एस्टाब्लिश की थी. With the weakening of the Mughal Empire, political scenario underwent a drastic change, and this led to decline of many prominent trading centers and cities. और जहाँ पे मुग़ल एम्पायर वीक होने लगा वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल सिनारियो था ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे. ओके, जो भी इम्पोर्टेंस था ट्रेडिंग सेंटर्स का, सिटीज़ का, ये डिक्लाइन होने लगा. ओके,
In the late 18th century, along with the rise of the presidencies means important administrative centers of the colonial India, several other cities in India experienced a large scale de-urbanization. And in the late 18th century, there were some cities developed, flourished, okay, like presidencies, means जो भी important एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे ब्रिटिशों के, ये डेवलप्ड हो रहे थे. एंड सेवरल अदर सिटीज़ वर डिक्लाइंड देयर, ओके. जो मिडिवल पीरियड की सिटीज़ थी, ये अब यहाँ पे डिक्लाइन हो रही थी, इनका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रहा था, ओके. ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन. और ये जो ब्रिटिशों का पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड था, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो रही थी. वाई? बिकॉज ऑफ द चीप मशीन मेड गुड्स ऑफ ब्रिटेन, ओके. ब्रिटेन से जो भी चीप मशीन मेड गुड्स अपने इंडिया में बेचे जा रहे थे, उसकी वजह से अपनी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो रही थी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ओके. एज अ रिजल्ट, centers specializing in handmade indigenous goods such as Dhaka in present day Bangladesh and मुर्शिदाबाद डिक्लाइन. एंड उसकी वजह से जो मेन सेंटर थे हैंडलूम सेंटर्स, ओके, हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स, ये डिक्लाइन हो रहे थे, जैसे दक्का एंड द मुर्शिदाबाद, ओके. Moreover, with the fall of the patrons of luxury goods, even towns specializing in manufacturing, they faded away. With the shifting of political and economic activities to newly established administrative centers, old ports and trading centers were de-urbanized. And during the British period, during the colonial era, there were some new administrative centers established, and because of these development, because of this establishment, some old ports and trading centers were de-urbanized, okay. जो भी old ports थे and trading centers थे, ये यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे थे, de-urbanized हो रहे थे, ओके. यू नो पोर्ट्स मीन्स जैसे रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन रहता है, एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट रहता है, वैसे ही शिप के लिए पोर्ट रहता है, ओके. देन ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 47. ग्रेजुअली मीन्स स्लोली. In different parts of India, new towns and cities developed after the decline of the old towns and cities. And जो भी old towns थे, cities थी, ये decline होने के बाद कुछ towns, कुछ cities यहाँ पे developed हुई थी in different part of our India, okay. अलग अलग area में कुछ new cities, कुछ new towns developed हो रहे थे, जो ओल्ड टाउन्स एंड सिटीज़ डिक्लाइन होने के बाद हुए थे, ओके. दीज न्यू अर्बन सेंटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. दीज centers, new urban centers, divided into different categories. First, port cities. Port cities were the most important centers of British trading activities, and these cities were important centers of British trading activities. Trading activities means business के लिए ये बहुत ही important centers थे, port cities. From Calcutta, Bombay and Madras, raw materials were sent to Britain. और कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजा जाता था. Similarly, British finished goods including Lancashire cottons entered India mainly through these ports. And वैसे ही जो भी finished goods थे, ये इंडिया आते थे, ये जो ports थे यहाँ से. These ports also played a key role in the further distributions of British goods to different parts of India. और ये ports बहुत ही important role play करते थे. जो भी distribution होता था, जो भी goods ब्रिटेन से अपने इंडिया में आते थे, उसके distribution के लिए ये ports बहुत ही important role play कर रहे थे.
Non-coastal cities. These newly emerged cities were strategically located. Some of these cities, such as New Delhi, rose to prominence mainly as a center of administration, and the Mughal Sarai as an important railway junction. न्यू दिल्ली वॉज द इम्पोर्टेंट सिटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और ब्रिटिशों के पीरियड में न्यू दिल्ली बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी थी. वाई? बिकॉज इट वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ओके, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एंड मुगल सराई एज एन इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शन, और मुगल सराई रेलवे जंक्शन की वजह से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी बन चुकी थी. और ये जो सिटीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी, ये स्ट्रेटेजिकली थी. स्ट्रेटेजिकली मीन्स प्लानिंग से बनाई हुई थी. ओके, नेक्स्ट, हिल स्टेशन. ऑल द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग और हिल स्टेशन गोज टू द ब्रिटिश. और जो भी हिल स्टेशन अपने इंडिया में डेवलप्ड हुए हैं, इसका क्रेडिट ब्रिटिशों को जाता है. दे डेवलप्ड हिल स्टेशन सच एज Dalhousie, Shimla, Mussoorie, Darjeeling and Ooty to escape the hot and humid weather of the plains. और जो भी हॉट वेदर अपने इंडिया में रहता है, ह्यूमिड वेदर रहता है, उससे बचने के लिए ये यहाँ पे जाते थे. ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश जो भी अपने इंडिया में रहते थे, ये हिल स्टेशन जाते थे. द मोस्ट वेल नोन एंड द प्रोमिनेंट हिल स्टेशन वॉज शिमला. और बहुत ही वेल नोन फेमस हिल स्टेशन है शिमला. ओके, बहुत ही प्रोमिनेंट हिल स्टेशन था ये. इट वॉज अ शिमला फ्रॉम वेयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्टेड इट्स अफेयर्स फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग द समर मंथ. ओके, the basic idea was to establish a place where they could recover from the heat and diseases of the plains. and basic ideas कहाँ से मिला था इन्हें ये हिल स्टेशन डेवलप करने का? जो भी प्लेन में हीट थी, मीन्स जो भी हॉट वेदर प्लेन में रहता है, और जो भी डिसीजेस, इससे रिकवर होने के लिए ये हिल स्टेशन इन्होंने बनाए थे. They constructed churches, malls and central avenue which reflected the influence of the English architectural traditions. और उन्होंने कुछ चर्च यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए थे, मॉल्स कंस्ट्रक्ट किए थे, उसकी वजह से उनका जो भी आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस थी ये शो होता है. The hill stations were special retreats for the English and the accentuated the difference between the Europeans and the Indians. और ये जो हिल स्टेशंस यहाँ पे थे, अपने इंडिया में थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, इसकी वजह से जो डिफरेंस था यूरोपियंस एंड इंडियंस में, ये और भी इंक्रीज हुआ था और भी बढ़ चुका था. ओके, records reveal that with the beginning of summer in India, most of the British officers moved to hill station, Shimla, Mussoorie, Nainital, Darjeeling and Ooty. Okay, और जो समर स्टार्ट होता था इंडिया में, तभी से ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने इंडिया में रहते थे, ये हिल स्टेशन पे चले जाते थे. ओके, Cantonment. What is the meaning of the cantonment? A town with a permanent military camp. जहाँ पे मिलिट्री कैंप रहते थे, वो टाउन को क्या कहा जाता था? कैंटोनमेंट. द ब्रिटिश ऑल्सो डेवलप्ड कैंटोनमेंट बेस्ड ऑन यूरोपियन प्लान with broad roads, huge open space and separate residential and ऑफिस एरियाज. एंड ब्रिटिशों ने कैंटोनमेंट भी अपने इंडिया में डेवलप किए हैं यूरोपियन प्लान के अनुसार. ओके, कैसे कैंटोनमेंट रहते थे? वहाँ पे ब्रॉड रोड्स रहते थे एंड बहुत बड़ी ह्यूज ओपन स्पेस रहती थी. एंड जो भी रेसिडेंशियल एरिया रहता था वो सेपरेट रहता था, एंड ऑफिस एरिया भी सेपरेट रहता था. ओके,
Lansdowne in Uttarakhand and the Danapur in Patna are the examples of the cantonment towns established during the British period. और ये जो दो towns है ये British period में establish किए हुए हैं ब्रिटिशों ने. Okay, these were generally a little away from the main city where the families of the armed force resided. और ये जनरली मेन सिटी से दूर रहते थे जहाँ पे जो सोल्जर्स रहते थे उनकी फैमिलीज भी रहती थी. ओके, नाउ MCQs. First, Calcutta, Bombay and Madras are, there are three options: hill stations, port cities and non-coastal cities. B option is answer here, port city. Okay, B option is answer. Then second, from which city did the British government conduct its affair for a part of the year? There are again three options: Agra, Mathura, and Shimla. C option is answer here. Okay, Shimla. Then next topic: old and the new urban centers differences. द कॉलोनियल टाउन्स वर डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली इंडियन टाउन्स. और जो कॉलोनियल टाउन्स थे ये अलग थे अर्ली इंडियन टाउन से. जो पहले के इंडियन टाउन्स थे इनसे कॉलोनियल टाउन्स बहुत ही अलग थे. नाउ लेट अस एग्जामिन द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल इंडियन टाउन्स cities and the new ones that sprang up during the British rule. अब हमें डिफरेंस देखना है जो ट्रेडिशनल इंडियन टाउन्स थे और जो न्यू टाउन्स जो न्यू सिटीज़ यहाँ पे एस्टैब्लिश की थी ब्रिटिशों ने, इनका हमें डिफरेंस देखना है. ओके, अर्बन सेंटर्स बिफोर द ब्रिटिशों के पहले कुछ अर्बन सेंटर्स यहाँ पे थे. ओके, मेनी ऑफ द इंडियन टाउन्स एंड सिटीज वर कॉल्ड वॉल्ड सिटीज बिकॉज दे वर एनक्लोज्ड विद इन फोर्ट वॉल्स एंड सराउंडेड बाय अ डीप मोट. एंड बहुत सारी इंडियन टाउन्स एंड सिटीज थी, उन्हें वॉल्ड सिटीज कहा जाता था. वाई? बिकॉज दे वर एनक्लोज्ड विद इन फोर्ट वॉल्स मीन्स constructed the wall around the city, and moat means fortification surrounded by water. The walls and moats were meant to protect the city from invaders. और ये जो walls यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जाती थी ये क्यों की जाती थी? जो एनिमीज़ रहते थे वहाँ पे जो अटैक होते थे उनसे प्रोटेक्शन के लिए. ओके, द वॉल्स ऑफ द फोर्ट वर यूजली थिक एंड हाई. और ये जो वॉल्स यहाँ पे रहती थी ये बहुत ही थिक और हाई रहती थी. ओके, these forts towns had दरवाज़ाज ह्यूज गेट्स दैट वर द एंट्री पॉइंट्स टू द सिटी. एंड ये जो सिटी फोर्ट टाउन्स रहते थे इसको दरवाज़ा रहता था, ह्यूज गेट रहता था. ओके, एंड ये एंट्री पॉइंट था सिटी का. द सिटीज़ वर यूजुअली डिवाइडेड इनटू वार्ड्स और थानाज. और ये जो सिटी थी ये डिवाइड रहती थी अलग अलग वार्ड्स में. These wards were further subdivided into मोहल्लाज. और ये वार्ड्स फिर से डिवाइड किए जाते थे मोहल्लाज और नेबरहुड्स में. फॉर एग्जाम्पल इन द 18th century द सिटी ऑफ दिल्ली हैड अबाउट 600 मोहल्लाज एंड 18 थानाज. और 18th century में दिल्ली जो सिटी थी इसको 600 मोहल्लाज थे एंड 18 थानाज. An instance is Shahjahanabad, a walled city built during Shahjahan's time. शाहजहानाबाद जो सिटी थी ये शाहजहां के टाइम में बिल्ड की हुई थी. द सिटी कंसिस्टेड ऑफ 14 एंट्री पॉइंट्स. कितने एंट्री पॉइंट्स थे? 14. अ पैलेस कॉम्प्लेक्स, रेड फोर्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट मॉस्क जामा मस्जिद लोकेटेड इन द मिड्स ऑफ द crowded mohallas and the bazaars. Besides, the city was dotted with gardens and idgah, dargah, chowks, open squares, and the cul-de-sacs, dead-end streets.
एंड ये जो सिटी थी यहाँ पे गार्डन्स बनाए हुए थे, ईदगाह, दरगाह एंड चौक्स भी थे, ओपन स्क्वेयर्स प्लेसेस थी, एंड डेड एंड स्ट्रीट्स भी थे. Another significant feature of this city was its havelis or houses of the rich. और दूसरा फीचर कौन सा था सिटी का? यहाँ पे हवेलीज बनाई हुई थी, और रिच लोगों के घर भी यहाँ पे, हाउसेस भी यहाँ पे थे. High thick walls with skillfully made massive gateways enclosed the havelis. Besides, they comprised a big central courtyards with several rooms, and बहुत बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स भी यहाँ पे रहते थे. और कोर्टयार्ड्स के आजू बाजू में बहुत सारे रूम्स वहाँ पे रहती थी. कोर्टयार्ड्स मीन्स ओपन स्पेस. ओके, इन मराठी अंगन बोलेंगे हम इसे. ओके, pavilion and well maintained gardens and water channels. ओके, ये सभी चीज़ें रहती थी. कौन से सिटी में रहती थी, कौन से टाउन्स में रहती थी? जो फॉर्म हुए थे ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ड्यूरिंग द मिडिवल एज. ओके, बिफोर ब्रिटिश पीरियड देर वर सम सिटीज़ एस्टाब्लिश्ड इन आवर इंडिया, डेवलप्ड इन आवर इंडिया. और ये शाहजहानाबाद डेवलप्ड हुई थी मिडिवल पीरियड में. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन. ओके, administrative system of the urban areas was quite different from that of the rural areas. Urban areas means cities. Okay, and rural area means villages. तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था अर्बन एरिया का, ये रूरल एरिया से अलग था. इन द विलेजेस पंचायत सिस्टम वॉज फॉलोड. विलेज में पंचायत सिस्टम फॉलो की जाती थी. वाइल द इंचार्ज ऑफ द टाउन वॉज कोतवाल with thanedars supervising the moholdars and darogas or policeman. and जो पंचायत सिस्टम थी यहाँ पे कोतवाल इंचार्ज रहते थे. ओके, उनके साथ थानेदार रहते थे. मोहलदार्स मीन्स पुलिसमैन भी रहते थे. आर्म वॉचमैन वर पोजिशन नियर द पोर्ट्स एंट्री पॉइंट्स. और आर्म वॉचमैन रहते थे जो एंट्री पोर्ट्स के एंट्री पॉइंट्स रहते थे, वहाँ पे इनकी ड्यूटी रहती थी. ओके, नाउ नेक्स्ट, न्यू अर्बन सेंटर्स. The British introduced a new architectural style in the India, and some new architecture style introduced in India by British. In terms of size, the new urban centers were quite big with broad roads and big open spaces in the form of towns, playgrounds and parks. And ये जो अर्बन सेंटर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे, ब्रिटिशों ने इंट्रोड्यूस किए थे, तो ये कैसे स्ट्रक्चर रहता था इनका? यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रॉड रोड्स रहते थे, बिग ओपन स्पेस रहती थी. ओके, एंड प्ले ग्राउंड्स एंड पार्क्स रहते थे. पब्लिक बिल्डिंग्स वर ऑल्सो लार्ज एंड द कंस्ट्रक्शंस वॉज गुड. और पब्लिक बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी रहती थी और कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छा रहता था. द ब्रिटिश रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स कॉल्ड बंगलोज वर डिज़ाइन फॉर न्यूक्लियर फैमिलीज. एंड जो ब्रिटिश रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स रहती थी, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पे रहते थे, इन्हें बेंगलो कहा जाता था. एंड ये कैसे डिज़ाइन की जाती थी? न्यूक्लियर फैमिली के लिए. ओके, बंगलोज वर यूजुअली ह्यूज एंड सिंगल. बंगलोज कैसे रहते थे? बहुत बड़े बड़े रहते थे और सिंगल स्टोरीड हाउसेस विथ गार्डन्स. गार्डन भी रहता था यहाँ पे. वरांडाज एंड वाइड विंडोज़, और बड़ी बड़ी विंडोज़ रहते थे, वरांडाज रहते थे. ओके, द सर्वेंट क्वार्टर्स एंड स्टेबल वर at times situated within the same compounds, but
separate from the house. And there were servant quarters also, means servant को रहने के लिए quarters रहते थे. एंड ये सेम कंपाउंड में रहते थे लेकिन सेपरेट रहते थे घरों से. ओके. टाउन्स अंडर द ब्रिटिश इन इंडिया कंसिस्टेड ऑफ facilities like race course, golf course, club or a gymnasium meant for the amusement of the Europeans only. And जो भी टाउन्स रहते थे, ब्रिटिशों ने इस्टेब्लिश किए हुए टाउन्स, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी रहती थी. ओके. जैसे रेस कोर्स, गोल्फ कोर्स, क्लब भी रहते थे, जिम्नेशियम रहते थे. एंड ये सिर्फ किसके लिए रहते थे? यूरोपियंस के लिए. However, some influential and the rich Indians were granted limited access. Some cities, such as the Madras, were divided into two parts: white towns, in which British lived, and black towns, where the local lived. And कुछ cities divide की हुई थी. ओके. रिच इंडियंस के लिए एंड कुछ यूरोपियंस के लिए. ओके. जैसे मद्रास डिवाइड की हुई थी टू पार्ट्स में, वाइट टाउन्स एंड द ब्लैक टाउन्स. वाइट टाउन्स में ब्रिटिश रहते थे, ब्लैक टाउन्स में लोकल पर्सन्स रहते थे. ओके. द ब्लैक एंड वाइट टाउन्स वर सेपरेटली बाय अ वॉल. और ये जो ब्लैक और वाइट टाउन्स थे ये वॉल से सेपरेट किए हुए थे. These new localities and new cities were given typical English names. Okay. एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस न्यू सिटीज़. और ये जो भी न्यू सिटीज़ यहाँ पे फॉर्म हुई थी बाय ब्रिटिश, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और यहाँ पे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस हुआ था बाय ब्रिटिश. ओके. लॉर्ड कॉर्नवालिस, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, introduced a new code of regulations known as the कॉर्नवालिस कोड. एंड ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1786 से लेके 93 तक. एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कोड ऑफ रेगुलेशन. ओके. known as Cornwallis Code in the year 1793. The district collector slowly emerged as the most important officials in the local administrations. And district collectors also emerged there, slowly emerged. Okay. धीरे धीरे ये पोस्टिंग यहाँ पे इमर्ज होती गई. एंड these collector was the most important official, okay, in the local administration. In the urban areas, on page number 49, the municipalities was in charge of public health, sanitation, lighting, sewage, park, roads. And urban area में कौन इंचार्ज था? ये सभी पब्लिक फैसिलिटीज़ का म्यूनसिपलिटी. In India, the oldest municipal corporation is in Madras. And oldest municipal corporation कौन सा है इंडिया का? मद्रास. Okay. It was created in December 1687 by a royal charter issued by King James II of England. As per Act 26 of 1850, a municipal government was responsible for the administering a major town. और यहाँ पे किसको रिस्पॉन्सिबल बताया है? एक्ट 26 ऑफ 1850 के अनुसार म्यूनसिपल गवर्नमेंट को किसके लिए? एडमिनिस्ट्रिंग अ मेजर टाउन. ओके. द म्यूनसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1864 and there were म्यूनसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड. एक्ट मीन्स लॉ. ये जो एक्ट थे ये सभी लॉ यहाँ पे फॉर्म किए गए थे. ओके. द चेयरमैन ऑफ द म्यूनसिपलिटी वॉज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हु वॉज असिस्टेड बाय कमिश्नर. एंड म्यूनसिपलिटी के जो भी चेयरमैन रहते थे ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे और ये इन्हें कमिश्नर हेल्प करते थे. The commissioner were selected from the responsible and popular resident of the city. And commissioner कौन रहते थे? पॉपुलर रेसिडेंट सिटी के. ओके. रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहते थे. द म्यूनसिपलिटीज मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वर बाजार टैक्स,
रोड टैक्स एंड द टैक्स ऑन फेरीज। और म्यूनसिपैलिटी का सोर्स कौन सा रहता था, ये सभी वर्क करने के लिए टैक्स, ओके, बाजार टैक्स, रोड टैक्स एंड द टैक्स ऑन फेरीज। फेरीज मीन ट्रांसपोर्टेशन, जो भी टैक्स यहाँ पे कलेक्ट होते थे उससे ये सब वर्क होता था, ओके। नाउ नेक्स्ट देर आर MCQs. First, a new code of regulations known as the fill in the blanks code was introduced in 1793. Cornwallis, C option is answer here. Okay, Cornwallis. Then, the oldest municipal corporation in India is in Madras. B option is answer here. Okay. Now, students, today's topic is completed here. You have to read the lesson and find the difficult word from this lesson and search it in dictionary. Okay. Have a good day.